Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and today we will be discussing SBI PO Mains 2021 English section. So friends, we had already discussed some parts of it yesterday in our previous session, and now we will be discussing the remaining topics. So friends, as you all know that IBPS PO is also around the corner. It's around I think 15th of October. So for that also you need to know that what kind of questions can be expected this year and what kind of questions came previous year in your IBPS PO as well as your SBI PO. Okay, so this will actually, knowing all the kind of questions will give you a very broad view and an understanding of what kind of questions you can expect this year also. So friends, as I said that we had discussed it yesterday, and so we are having this series of zero se PO. So if you know nothing about the subject also, then also if you want to start with your preparations, and if you are not very keen to go enroll into any coaching, so you can follow this series at our YouTube channel, and you will be able to understand all the basics at least, and also you will be able to know that what kind of questions will come in the exam. So you will be in a way exam ready without enrolling to any course specifically, right? So these series will be very useful for you. So I request, for your own benefit, you join us every day from Monday to Saturday on our channel at 4 p.m. and you will get all the information regarding your exams and all kind of practice of GA, Quant, Reasoning and English. Yeah, so friends, again yesterday we had discussed some of the questions of rearrangement of words we had discussed. This is what came last year in SBI PO Mains 2021. Okay, so first we'll have a look what kind of questions came. So we had two questions of rearrangement of words. Okay, this is like word swapping. I discussed it yesterday. You can also refer to that video like yesterday's lecture if you want to see the exact questions. So friends, rearrangement of words, you had two questions. Then coherent paragraph, 3 questions. Again I said this thing yesterday also that coherent paragraph आपके पहले आते थे, used to get these earlier, but बीच में बंद हो गए थे आना, but now again you are getting coherent paragraph. So this is also important, and इसमें आपको link establish करना होता है between the paragraphs given और missing paragraph आपको find करना होता है. Okay, so ये कोहेरेंट पैराग्राफ की बात हो गई है. तो आप देख रहे हैं इसमें 2 क्वेश्चंस आए, इसके 3 क्वेश्चंस आए. ये SBI PO की बात है, राइट? अब अगर हम IBPS PO की बात करें, उसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या है कि IBPS PO और इवन SBI PO में भी आजकल ऐसा होने लग गया है कि पहले आपके आ जाते थे कि किसी चीज़ के 5 क्वेश्चन आ गए, फिर किसी के 6 आ गए, 5-5, 4-4, 6-6 के सेट आते थे, राइट? बट अब ऐसा नहीं होता है. दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ वैरायटी, राइट? यानी कि ज़रूरी नहीं है कि 5-6 टाइप के क्वेश्चन में आपका इंग्लिश सेक्शन ख़त्म हो जाएगा. कम से कम 8-10 टाइप्स यू कैन एक्सपेक्ट. ओके, नाउ इफ आई रिपीट इन इंग्लिश, यू कैन एक्सपेक्ट around 7 to 10 types of different types of questions, and 2, 3, 4 of each category, of each type you can expect in your IBPS PO prelims as well as mains. Okay, so in IBPS PO also you had one different than the usual pattern. You had statement and inference. Okay, statement and inference, so that also you should practice this for this year's exam as well. Okay, so moving back to your SBI PO.
So these are the 5 questions: rearrangement of words, coherent paragraph. Then you had error detection on new pattern. Now this also we discussed, new pattern does not always mean something that is scary or not doable. This is very much doable. Last year also it was very much doable, and you can refer to the previous lecture, yesterday's lecture, to see that what was the exact pattern. And also on the same lines you get fillers also, like you're given 2 to 3 sentences, right? And all are based on the if we talk about fillers, all contain the same word, like in the blank the same word should come. And in error detection also there were 3 sentences given, and all were based on the same rule of grammar. The error was based on the same grammar rule. So students may tend to be scared seeing the number of statements in the question, but it actually makes the sentence or the question easier, because if you are not able to find out the answer from one sentence, you always have the option to find out the answer from the second and the third sentence, right? So this is one good thing, that you don't have to be intimidated by seeing various sentences in the error detection question or filler question. all right, so मैच द कॉलम्स 4 आए थे, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. रीअरेंजमेंट, कोहेरेंट पैराग्राफ, एरर डिटेक्शन का न्यू पैटर्न, मैच द कॉलम्स, दीज आर ऑल डिस्कस्ड. ये कल के दे हैव बीन डिस्कस्ड कल के लेक्चर में. आज के लेक्चर में हम आरसी डिस्कस करेंगे, राइट, एंड क्लोज पैसेज डिस्कस करेंगे, राइट. और कल के लेक्चर में हमने एक फ्रेजल वर्ब्स भी डिस्कस कर लिया है. सो नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप लोगों को आरसी पढ़कर इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, आपको लग रहा है कि शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा लैकिंग रह जाती है आरसी में, सो आज का लेक्चर आप पूरा लास्ट तक देखें, राइट. एंड सिमिलरली क्लोज के लिए भी, क्लोज इज समथिंग दैट इज़ वेरी स्कोरिंग, ओके. तो आप इसको भी प्रैक्टिस करें. इनफैक्ट क्योंकि IBPS PO जैसे मैं बोल रही हूँ आने वाला है, इट इज़ राउंड द कॉर्नर उसका प्रीलिम्स. सो देर आर सम क्वेश्चंस जो कि ग्रामर बेस्ड होते हैं, राइट, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, राइट. तो अगर आपको लगता है, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको ग्रामर से बहुत डर लगता है, उनको लगता है कि कैसे होगा, मैं शायद इंग्लिश का कट ऑफ ही क्लियर ना कर पाऊँ, तो आप वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस पे आप स्ट्रेस दें. और ये मैं अपनी क्लास में भी बताती रहती हूँ. जब स्टूडेंट्स लास्ट मिनट टिप्स पूछते हैं, आई ऑलवेज टेल देम कि वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस करो और ग्रामर में केवल रूल्स पढ़ लो, ठीक है. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स. केवल रूल्स पढ़ लो, बट देन यू हैव टू प्रैक्टिस. आपने ऐसा नहीं सोचना है कि मैम ने कहा कि रूल्स पढ़ लो एंड देन हो जाएगा आपका काम, बट प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा. और प्रैक्टिस कैसे करनी है? iExamBee के फ्री मॉक्स, दे आर एब्सोल्युटली फ्री. तो iExamBee.com पे जाओ, इसके आपके जो भी मॉक टेस्ट हैं वहाँ पे सारे फ्री हैं. IBPS के मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, और ऐसे ही SBI के मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाओ, जो भी आपको मिल रहे हैं सब लगा लो. और उन सब में ग्रामर के रूल्स हैं, वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं. अब वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हुए ये भी मैं बहुत वीडियोस में बताती हूँ. एक है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है. ये भी आपका, अगर आप बोलो वोकैब बेस्ड, यहाँ आपका इट इज नॉट बेस्ड ऑन ग्रामर, ठीक है, इट इज नॉट ग्रामर बेस्ड. सो ग्रामर नॉट रिक्वायर्ड, कोहेरेंट पैराग्राफ ग्रामर नॉट रिक्वायर्ड. एरर डिटेक्शन में चाहिए होती है. मैच द कॉलम में भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़े, बट ये भी आपका डूएबल है. सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट. और आरसी में भी नॉट रिक्वायर्ड, क्लोज में भी वेरी लिटिल, ऑलमोस्ट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है. बहुत कम चाहिए होता है, 50-50, ठीक है. सो और फ्रेजल वर्ब्स अगर आपने अलग से कर दी है तो ये ग्रामर ही वैसे, बट केवल फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़े हुए हैं तो भी आपका काम हो जाएगा. सो दीज, अगर आपको ग्रामर नहीं आती है, कट ऑफ के बहुत ही आगे आप जा सकते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट. सो पहले क्लोज देखते हैं. अब ये एक नया पैटर्न है, आप इसको एक बार रीड करें एंड देन वी विल डिस्कस दिस, ओके.
सो यस, आई होप यू हैव हैड अ गुड रीड। नाउ अगर आपने डायरेक्शंस पढ़े हो इसके ध्यान से, सो दे से दैट कि यहाँ पे ऑलरेडी एक आपको ब्लैंक्स के आगे वर्ड्स दे रखे हैं। 1 के आगे वर्ड है, 2 के आगे वर्ड है, 3rd ब्लैंक के आगे वर्ड है। अब आपको देखना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये सही हैं या नहीं। अगर ये सही हैं तो आप चूज करेंगे नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। अगर ये सही नहीं है तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए है 1 2 3 4 वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ आपको ये न्यू पैटर्न के क्लोज टेस्ट, न्यू क्या मतलब यूजुअल से थोड़ा डिफरेंट है पर काफ़ी बार आ चुका है ये पैटर्न। ऑल्सो ऐसे में ही सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आजकल ऐसे आ रहा है। सो इनफैक्ट IBPS PO में ही लास्ट टाइम आया था, 1 पैराग्राफ वॉज गिवन एंड one whole phrase had to be replaced, right? तो इनमें ऐसे से एक वर्ड की बजाय पूरा ऐसा फ्रेज था, हाईलाइटेड था और आपको उसको चेक करना था कि वो सही है या नहीं, और नहीं है तो उसको इम्प्रूव करना था फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस जो यहाँ पे आपको दिए होते हैं। ऑलराइट, सो अभी अगर इसको देखें तो दिस वन सेज दैट द गवर्नमेंट इज प्रेजेंटिंग टू कम आउट, राइट? So is it making sense, presenting to come out? So of course not. It should be the government is presenting। क्या होता है presenting? मतलब कि वो कोई चीज़ सामने ला रहे हैं, ठीक है। बट ये सेंटेंस का डिमांड है प्रिपेयरिंग, मतलब कि वो तैयारी कर रहे हैं। द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू कम आउट विद अ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, राइट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रिपेयरिंग। ऑलराइट, अब देखें आगे पढ़ें इसको। यस, तो क्या कह रहा है ये? फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द अनसाइट्रल मॉडल लॉ एंड इज प्रपोज्ड टू बी मेड व्हाट? एप्लीकेबल, अवेलेबल, एसोसिएट, एट्रीब्यूटेड, एक्यूजेबल। एक्यूजेबल क्या होता है? किसी को अक्यूज करना या किसी पे ब्लेम डालना, ठीक है, जिम्मेवार ठहराना किसी को। एट्रीब्यूटेड मतलब उसके जैसा, ठीक है, सो जिसमें वैसे फीचर्स हों, राइट? सो यहाँ पर एक्चुअली जो सही वर्ड बैठता है वो एप्लीकेबल ही बैठता है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये दोनों को अप्लाई होते हैं। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं बेस्ड ऑन द अनसाइट्रल मॉडल लॉ एंड इज प्रपोज्ड टू बी मेड एप्लीकेबल, मतलब दोनों को अप्लाई होते हैं। कौन? फॉर बोथ कॉर्पोरेट डेटर्स एज वेल एज सो एंड सो, ठीक है, guarantors to such debtors। okay, so applicable fits here। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा no replacement required, right? अब आगे पढ़ें। The Corporate Affairs Ministry which is implementing the Insolvency and Bankruptcy Code has dash comments on the। अब ये क्या करेगा? जो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी? कमेंट्स को क्या करेगी? सीक, राइट? कमेंट्स को सीक करेगी। सो योर आंसर फॉर दिस ब्लैंक थॉट इनकरेक्ट है, तो ये चेंज होगा और इसका होगा सॉट। मतलब ये आपका सीक से आया है, इसका बेस वर्ड सीक है, तो वो ढूंढेगी या मांगेगी कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क टिल December 15। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वाला देखें, 4th ब्लैंक। इट सेज, आगे अकॉर्डिंग से ही स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री द नीड फॉर हैविंग रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स टू डील विद क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इश्यूज हैज मेक मोमेंटम। सो मेक तो गलत है, हैज फिर ईडी फॉर्म आना चाहिए कोई, राइट? सो यहाँ पे ये नहीं होगा। ओके, हैज या मोमेंटम क्या किया जाता है? मोमेंटम गेन किया जाता है, ठीक है। और जो लेड है उसका मतलब क्या होता है? फैलाना या लेटना, तो ये गलत है। सेड मतलब बोलना, लेड मतलब जिससे लीड से आया है लेड, ठीक है। सो मोमेंटम को गेन किया गया है, हासिल किया गया है। सो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वो होगा ऑप्शन 1 गेन्ड। ऑलराइट, अब अगर हम आगे देखें अपना 5th ब्लैंक, इट सेज 5th वाला सेंटेंस अगर हम पढ़ें, इट सेज द लॉ प्रोवाइड्स, यहाँ पर द लॉ प्रोवाइड्स अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क
that can be adopted by countries with modifications to suit the domestic context of the entertaining jurisdiction. तो कौन सा? enthralling क्या होता है? enthralling मतलब very happy, ठीक है, enthralled, so it is not correct. so यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? enacting jurisdiction, ठीक है. तो मतलब जो भी jurisdiction यहाँ पर एक्ट कर रहा है उसके हिसाब से जो भी है मॉडिफिकेशन उस हिसाब से होंगी, ठीक है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है enacting. ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे आपका आरसी. नाउ दिस इज 1 आरसी. इसमें भी 6 क्वेश्चंस आए थे और सेकेंड आरसी पे भी 6 क्वेश्चंस आए थे. तो पहले ये वाला देखते हैं. इट सेज, आई विल गिव यू अ मोमेंट, थोड़ा सा रीड करें या आप खुद भी इफ यू वांट आप पॉज करके यू कैन हैव अ रीड. ओके, सो आई गिव यू अ मोमेंट, एक बार जस्ट हैव अ ग्लैंस एंड देन आई विल स्टार्ट रीडिंग. सो इसको थोड़ा रीड करते हैं. इट सेज, किस चीज के बारे में? ये पॉलिसी मेकर्स के बारे में, ठीक है. सो इट सेज, so policymakers haven't always considered how economic shocks impact women and men differently और how governments should respond. यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि पॉलिसी मेकर्स ने हमेशा इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा है कि जो इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं वो मेन और विमेन को डिफरेंटली कैसे इम्पैक्ट करते हैं, राइट. औरतों को और आदमियों को अलग ढंग से इम्पैक्ट करते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, राइट. सो आगे बोला गया है, when 2008 recession hit, few asked how stimulus measures would affect women compared with men. Okay, so यहाँ बोला गया है कि जब 2008 का रिसेशन आया था तो कुछ लोगों ने पूछा कि जो भी आपके मेजर्स हैं इससे उभरने के लिए, जो भी सरकार हेल्प करने के लिए मेजर्स ले रही है, वो विमेन को कैसे हेल्प करेगा और वो मेन को कैसे हेल्प करेगा, अलग अलग ढंग से कंपैरिजन एक बार बताओ उसका, राइट. तो फिर आगे बोला गया, दैट अप्रोच वोंट वर्क फॉर द कोविड-19 क्राइसिस. ओके, सो वो कह रहे हैं कि ये जो सेम अप्रोच है ये कोविड-19 क्राइसिस के लिए काम नहीं करेगी. एज लीडर्स फेस द इनॉर्मस चैलेंज ऑफ रीबिल्डिंग पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमीज, विमेन मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज. कह रहे हैं कि जब पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमीज को रीबिल्ड करने के हमारे लीडर्स सारी कोशिश कर रहे हैं तो विमेन जो हैं उनकी सारी स्ट्रैटेजीज का केंद्र होनी चाहिए, उनकी सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है. अब यहाँ बोला गया है, इन मेनी कंट्रीज विमेन हैव बीन हिट हार्डेस्ट बाय कोविड-19 लॉकडाउन्स. ओके, तो वो कह रहे हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन्स में ऐसी बहुत कंट्रीज हैं, इन मेनी देयर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे विमेन को सबसे ज़्यादा वो उनको बुरा असर पड़ा है कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से. ओके, जैसे कि यहाँ कह रहे हैं लैटिन अमेरिका में 50% दे वर 50% मोर लाइकली दैन मैन, यानी कि आदमियों के कंपैरिजन में औरतें 50% ज़्यादा चांस था कि अपनी जॉब लूज कर दें पैंडेमिक के फर्स्ट फ्यू मंथ्स में, ठीक है. सो ये इसका आंसर है. इसमें ट्रांसलेशन है इसका. मेन मोटा मोटा मतलब ऐसा बोला गया है कि जो विमेन और मेन हैं उनको अलग अलग ढंग से जो जैसा इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं वो डिफरेंट तरह से उनको अफेक्ट करते हैं, राइट. सो आगे देखें, विमेन टेंड टू बी हेवीली एम्प्लॉयड इन वल्नरेबल सेक्टर्स सच एज रिटेल, रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी. ओके, अब वो बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि विमेन है बहुत ज़्यादा हिट होती है या इन अ डिफरेंट वे हिट होती हैं दैन मैन. तो यहाँ बोला इसीलिए क्योंकि जो विमेन हैं वो हेविली एम्प्लॉयड हैं इन वल्नरेबल सेक्टर्स, यानी कि जो कोविड को वल्नरेबल थे, जैसे कि रिटेल, रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि ये सेक्टर्स थे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे कोविड से, राइट. आगे बोला, दे ऑल्सो ऑफन वर्क इन इनफॉर्मल जॉब्स, राइट. विमेन हैं वो इनफॉर्मल जॉब्स में काम करती हैं, जैसे कि स्ट्रीट्स में वो सामान बेचती हैं,
एंड स्यूइंग एट होम, और घर में सिलाई करके अपना गुजारा चलाती हैं. ऑलराइट, सो दैट लैक प्रोटेक्शंस सच एज पेड सिक लीव और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस. ओके, अब क्योंकि जॉब सारी इनफॉर्मल हैं, तो इसमें कोई प्रोटेक्शंस नहीं होते हैं, जैसे कि अगर सिक लीव है तो उसकी सैलरी मिल रही है, या अनएम्प्लॉयमेंट का इंश्योरेंस है, ये सब नहीं होता है. ऑलराइट, now when those jobs disappeared, women had no social safety net to फॉल बैक ऑन. और जब ऐसे जॉब्स जो इनफॉर्मल जॉब्स थे, जैसे अगर वो स्ट्रीट्स में कुछ सेल कर रही हैं, पर अब जब क्योंकि लॉकडाउन हो गया, बाहर नहीं आ सकते हैं लोग, तो ये सब जॉब साइट डिसअपियर हो गए, तो विमेन के पास कोई भी सोशल सेफ्टी नेट नहीं था कि जिसकी तरफ वो वापस जा सके, जो उनको बचा सके. राइट, और यहाँ लिखा है मोर ओवर विमेन कैन हैव एंड डैश इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक रिकवरी पर्टिकुलरली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. ओके, तो यहाँ बोला गया है कि विमेन एक कैसा इम्पैक्ट वो हमें देखना होगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा. विमेन कैन हैव अ डैश इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक रिकवरी पर्टिकुलर, जब भी स्पेशली जब लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहाँ पे विमेन का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक रिकवरी कराने में किसी भी देश के. राइट, सो वर्ल्ड बैंक रिसर्च फॉर इंस्टेंस शोज नाइगर्स पर capita GDP could be more than 25% larger if gender inequality were reduced. So अगर इस कंट्री में अगर जेंडर इनइक्वालिटी रिड्यूस हो गई, मतलब कि जेंडर की इक्वालिटी आ जाए, तो 25% लार्जर एक्स्ट्रा इनकी GDP हो जाएगी. ठीक है, पर कैपिटा GDP. ठीक है, सो ये इसका ट्रांसलेशन है. अब अगर और आगे देखें तो इसमें कहा गया है व्हाट कैन गवर्नमेंट्स डू. ओके, अब अगर ये सब फैक्ट्स हैं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है. एटलीस्ट 3 ब्रॉड एरियाज डिजर्व अटेंशन. ऑलराइट, सो कौन से हैं वो 3 ब्रॉड एरियाज जो अटेंशन डिजर्व करते हैं. नाउ फर्स्ट है कि कंट्रीज कैन एक्सेलरेट डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स. ओके, तो यहाँ बोला गया है कि जो गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन के सिस्टम्स हैं, उनका जो डिजिटाइजेशन है वो उसको जल्दी कर दें, यानी कि पेमेंट और जैसे कि पेमेंट प्लेटफॉर्म्स एंड अदर क्रिटिकल सर्विसेज इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर. तो ये सब जो हैं, अगर पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स, इन सबको अगर डिजिटाइज कर दिया, अगर हमें सबका एक डिजिटल एंट्री होने लग गई, सबके जो पेमेंट्स हैं वो पूरा का पूरा डिजिटाइज हो गया, और भी ऐसे जो ज़रूरी सर्विसेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप में आकर अगर कंट्रीज ने उनको सबको डिजिटाइज कर दिया, तो एक ये फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स, मतलब ये गवर्नमेंट एक स्टेप ले सकती है. ठीक है, तो 3 एरियाज बताए हैं, उसमें से एक एरिया ये है डिजिटाइजेशन. ठीक है, फिर आगे उसका डिटेल बताया गया है. इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड वुमेन आर ऑफन इनविजिबल टू देयर गवर्नमेंट्स. अब बताया गया है कि हाउ विल दिस डिजिटाइजेशन हेल्प, राइट, द वुमेन एंड द इकोनॉमी. देन तो यहाँ बोला क्या है, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड वुमेन होती हैं जो, यानी कि पुअर वुमेन, सो वो इनविजिबल होती हैं टू द गवर्नमेंट्स. उनको पता नहीं चलता है, गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है कि किस किस कोने में पुअर वुमेन रह रही हैं, लाई कर रही हैं, और वो क्या क्या काम कर रही हैं, उनके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट को. ठीक है, सो दे आर लेस लाइकली टू हैव फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन. तो उनके हो सकता है उनके कार्ड्स भी ना बने हों, सारे ID कार्ड्स ना बने हों, राइट, उनका मोबाइल फ़ोन ना हो, और उनका सोशल रजिस्ट्री में कोई नंबर भी ना हो. यानी कि जब हम लोग जो हम इंडियंस हैं, तो हम सबके गांव के रूट्स में हम सबके नाम लिखे होते हैं कि हमारे फादर ये हैं, और फिर हमारे ग्रैंडफादर ये हैं, उनके इतने इतने बच्चे हैं, तो हम सबके नाम होते हैं. बट ये जो पुअर विमेन होती हैं, वो भी अगर हो सकता है कि उनका नाम उस रजिस्टर में भी ना चढ़ा हो. ऑलराइट, so advanced digital systems can help identify women in need so they can receive cash quickly and securely. तो अगर ये सब चीज़ें डिजिटाइज हो जाएंगी, उनका नाम आ जाएगा सोशल रजिस्ट्री में, हमें उनकी कंडीशन पता होगी,
तो अगर डिजिटल सिस्टम्स हमारे एडवांस हो जाते हैं तो विमेन इन नीड, जिन औरतों को ज़रूरत है वो आइडेंटिफाई हो सकती हैं और उनको कैश क्विकली और सिक्योरली मिल सकता है। ओके, सो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स जो कि टारगेटेड टू विमेन इन कंट्रीज सच एज इंडोनेशिया, नाइजीरिया एंड जाम्बिया have already offered millions of women safer access to and increased control over funds। अब अगर जो विमेन होंगी, ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इंडोनेशिया, नाइजीरिया एंड जाम्बिया में ऑलरेडी जो बहुत सारी विमेन हैं उनको एक सेफ एक्सेस मिल गया है टू मनी एंड उनको कंट्रोल भी मिल गया है अपने फंड्स का, राइट। कभी कभी होता है कि अगर कैश आ रहा है तो किसी का घर में कोई बड़ा ले ले या हस्बैंड ले ले या सास ले ले या मम्मी ले ले, तो उन लोगों को इतना मेरे ख्याल से कंट्रोल नहीं मिलेगा, राइट। बट बिकॉज उन्हीं के अकाउंट में आएगा, सब कुछ डिजिटाइज्ड हो जाएगा, तो जो विमेन इन नीड है उन्हीं के पास फंड आएगा और वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग फंड यूज कर सकते हैं। ओके, अब आगे बोला गया है इंडियाज एक्सपीरियंस हाईलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग दिस राइट। बोला है कि इंडिया का भी एक्सपीरियंस है, वो बताता है कि ये राइट अगर किसी को मिले तो उसके कितने बेनिफिट्स हैं। अब लास्ट ईयर द गवर्नमेंट वाज एबल टू ट्रांसफर पैंडेमिक रिलीफ पेमेंट्स क्विकली टू मोर देन 200 मिलियन विमेन इन नीड। तो वो बता रहे हैं कि लास्ट ईयर जो 200 मिलियन विमेन इन नीड थी उनको तुरंत पैंडेमिक रिलीफ पेमेंट्स चले गए, जिससे कोई कमाई नहीं कर पा रहा है, उनके घर में राशन के पैसे चले गए, ऐसे पैसे जा सके क्योंकि इंडिया में पहले से सेक्स डिसएग्रीगेटेड डेटा यानी कि जेंडर के हिसाब से डिवाइडेड डेटा था और एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था और इन विमेन के अपने बैंक अकाउंट थे, तो इसीलिए डिजिटाइजेशन इस तरह से हेल्प करती है। तो पहला पॉइंट इन्होंने बोला, 3 एरियाज बोला था, पहला था डिजिटाइजेशन कर दो। सेकंड है कि गवर्नमेंट्स कैन रिमूव बैरियर्स टू विमेन्स फुल इंक्लूजन इन द इकोनॉमी वेदर एज एंटरप्रेन्योर्स और एम्प्लॉयज। ओके, अब बोला है कि कोई भी अगर बैरियर है जो विमेन की इंक्लूजन इन द इकोनॉमी को एज एन एक्ट कर रहा है, एज अ बैरियर एक्ट कर रहा है, तो उसको हटा सकती है गवर्नमेंट। अब चाहे वो विमेन एज एन एम्प्लॉई है तब वो नहीं इंक्लूड हो पा रहे हैं, या एज एन एंटरप्रेन्योर है तब नहीं इंक्लूड हो पा रहे हैं, जो भी केस है, पर गवर्नमेंट को ये सारे बैरियर्स रिमूव कर देने चाहिए। आगे देखें, इन इकोनॉमीज विद द स्ट्रिक्टेस्ट पैंडेमिक लॉकडाउन्स women owned companies were 10 percentage points more likely to close than men। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो women owned companies थी और जब पैंडेमिक लॉकडाउन हुआ, इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, ठीक है, जहां पर जिन कंट्रीज में, तो विमेन ओन कंपनीज 10% ज्यादा चांस थे कि शटडाउन हो जाए देन मैन ओन्ड कंपनीज, राइट। सो दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, मोस्ट विमेन ओन बिजनेसेस टेंड टू बी स्मॉलर। अब यहाँ पे दोबारा रीजन बताया गया है कि जो विमेन ओन बिजनेसेस होते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप्स के होते हैं और इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस होते हैं विद फ्यूअर देन 5 एम्प्लॉयज। मतलब विमेन टेंड टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस। ओके, सो क्लोजिंग जेंडर गैप्स इन एंटरप्रेन्योरशिप वुड हेल्प रिड्यूस पावर्टी, क्रिएट जॉब्स एंड स्पर ग्रोथ एंड इनोवेशन। ओके, तो कह रहे हैं कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप में भी हम जेंडर गैप्स को कम कर दें या खत्म कर दें तो इससे पावर्टी कम हो जाएगी और जॉब्स मिलेंगे और ग्रोथ और इनोवेशन और ज्यादा बढ़ेगा, राइट। अब आगे देखें, यहाँ बोला है थर्ड पॉइंट है, फाइनली गवर्नमेंट्स मस्ट कमिट टू इंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन फॉर गर्ल्स थ्रू एटलीस्ट सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, बोला है कि सेकेंडरी तक एटलीस्ट गवर्नमेंट्स को इंश्योर करना चाहिए और कमिट करना चाहिए कि गर्ल्स को स्ट्रॉन्ग एजुकेशन मिले। ऑलराइट, सो यहाँ आगे बोला गया है, इवन बिफोर द पैंडेमिक द वर्ल्ड फेस्ड अ लर्निंग क्राइसिस। ओके, तो ये कह रहे हैं कि केवल पैंडेमिक की बात नहीं है, उससे पहले भी वर्ल्ड एक लर्निंग क्राइसिस फेस कर रहा था। मोर देन हाफ ऑफ 10-year-olds in schools across low and middle income countries could not read and understand a basic text। तो वो कह रहे हैं कि 10 साल के जो बच्चे हैं उससे आधे से ज्यादा वो बच्चे जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से थे वो लिख नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे और समझ नहीं सकते थे बेसिक टेक्स्ट। ऑलराइट, सो द पैंडेमिक हैज मेड थिंग्स वर्स। ये तो पहले की बात थी,
पैंडेमिक के बाद और चीज़ें खराब हो गई हैं. ग्लोबली मोर देन 800 million students remain out of school and many poor students especially in rural areas have no access to remote learning. Okay, तो वो कह रहे हैं कि 800 मिलियन स्टूडेंट्स अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं और बहुत पुअर स्टूडेंट्स जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनको रिमोट लर्निंग का कोई एक्सेस नहीं है. इन सब सहारन अफ्रीका as many as 45% of children have been completely disconnected during school closures. ठीक है, जब स्कूल बंद हुए थे तो 45% चिल्ड्रन जो थे सब सहारन अफ्रीका में वो कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए थे स्कूल के क्लोजर्स से. ओके, सो लास्ट सेंटेंस कह रहा है कि with the right policies countries can rebuild stronger and more inclusively. As countries respond to the biggest challenge of our generation, they should view women as central builders of a strong post-COVID world. Okay, मतलब कि पॉलिसी सही हो तो कंट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा बेटर रीबिल्ड हो सकती हैं, उनकी इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं और मोर इंक्लूसिव हो सकती हैं, सबको लेकर बढ़ने वाली हो सकती हैं. और जैसे पोस्ट कोविड वर्ल्ड है उसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए विमेन को सेंट्रल पॉइंट रखना चाहिए, सेंट्रल बिल्डर्स रखना चाहिए. ओके, सो नाउ क्वेश्चंस देखते हैं. What are the broad areas that deserve attention according to the passage to help women combat the economic shock from the pandemic? क्या क्या बोले हैं? 3 एरियाज थे, डिजिटाइजेशन, एजुकेशन एंड रिमूविंग ऑफ बैरियर्स. राइट, सो ये वाला पॉइंट नहीं है. क्लोजिंग डाउन स्मॉल बिजनेसेस एंड एनकरेजिंग ओनली लार्ज बिजनेसेस, ये सही पॉइंट नहीं है. तो 1, 2 and 4 एंड दैट इज इन ऑप्शन 4. ऑलराइट, तो देखिए इस तरह से जैसे ही हम पैसेज समझ जाते हैं हमें पैराग्राफ के क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत इजी हो जाता है. राइट, सो 1, 2, 4 इसका आंसर है. आगे बढ़ते हैं. तो ऑथर फील्स दैट विमेन मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द लीडर स्ट्रैटेजीज वाइल रीबिल्डिंग पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमीज. तो ये एकदम लास्ट लाइन है पैसेज की और ये एकदम सही लाइन है. तो इसमें बोला गया है दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू. ओके, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. इट सेज चूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक इन अ सेंटेंस एज mentioned in the passage as one from the options below. Moreover, women can have, ये हमारा सेंटेंस हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें ब्लैंक था. It says moreover women can have and dash impact on economic recovery. Okay, particularly in so and so. तो कैसा हो सकता है इम्पैक्ट? या तो एग्रीवेट मतलब कोई चीज और ज्यादा खराब होना. ठीक है, तो ये ऑथर नहीं कहना चाह रहा है. ऑथर इज प्रो विमेन. राइट, ही इज प्रो, ही इज इन द फेवर ऑफ ब्रिंगिंग अप द विमेन. एग्रीवेट इज नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो या सो नेक्स्ट, मोरओवर विमेन कैन हैव एन ऑड इम्पैक्ट. नो. एक्शन इम्पैक्ट कोई मतलब नहीं बनता है. हैव एन ओवर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक, ओवर भी नहीं. आउटसाइज्ड मतलब कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा इम्पैक्ट विमेन रखती हैं ऑन द इकोनॉमिक रिकवरी. ओके, सो आवर करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 2. ओके, नाउ मूविंग अहेड, इट सेज व्हाई डज द ऑथर सजेस्ट digitization of government identification systems, payment platforms and other critical services. So वो क्यों बोलते हैं कि डिजिटाइजेशन होना चाहिए? So that the economy could have a cashless transaction easily. Okay, now it would create gender equality. क्या gender equality आएगी? No. It could boost women owned small businesses and help women entrepreneurs. It would close gender gaps in entrepreneurship and help reduce poverty, create jobs and spur growth and innovation. तो ये exactly line आपके पैसेज से ही है. So option 4 is the correct answer here. केवल एक चीज नहीं, इससे ये सब चीजें होंगी. Right? So option 4 is the correct answer here कि author suggest करते हैं digitization because of this reason that आपका जो विमेन हैं वो
आइडेंटिफाई हो सकें, राइट। सो विमेन आइडेंटिफाई हो सकें कि कौन है और उनको उनका ट्रांजैक्शन जो है वो भी इजीली हो पाए। ऑल राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हियर। नाउ यहाँ पे देखें, फाइंड एन एरर इफ एनी इन द सेंटेंस मेंशन्ड एज टू इन द पैसेज। तो हमने ये सेंटेंस देखा था, दिस इज मेंशन्ड एज टू। इट सेज इन इकोनॉमीज विद द स्ट्रिक्टेस्ट पैंडेमिक लॉकडाउन्स women owned companies were 10 percentage points more likely to close than men। तो अब इसमें गलती क्या है, जब हम men का कंपैरिजन कर रहे हैं तो women से करेंगे, राइट। बट यहाँ किसका कंपैरिजन हो रहा है, women owned companies का, तो उसका कंपैरिजन किससे होगा, टू क्लोज देन men owned companies, ठीक है। तो जो कंपैरिजन है वो सेम चीजों में होना चाहिए, सेम तरह की चीजों में। सो यहाँ पर टू क्लोज देन दोज ऑफ मेन, ठीक है, देन दोज ओन्ड बाय मेन, इस तरह से ओन्ड बाय मेन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन 4, यहाँ पे एरर लाई कर रहा है। ऑल राइट, सो आगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, इसको भी आई विल एक्सप्लेन। Okay, there's one more question. It says, which of the following statements is not correct according to the passage? तो अगर हम देखें, यहाँ बोला गया है, it is common for policy makers not to consider how economic shocks impact women and men differently, ठीक है। सो ये एकदम ओपनिंग लाइन ही है कि पॉलिसी मेकर्स कंसिडर नहीं करते हैं। सो दिस इज करेक्ट, ओके। So researchers show that Niger's per capita GDP would be more than 25% larger if gender inequality were reduced, right? So yes, this is also correct. अब इसमें बोला गया है, advanced digital systems have helped women in India greatly during the time of pandemic। तो ये बोला था कि करीब सम मिलियन लोगों में, विमेन में पैसे गए उनके अकाउंट में, राइट, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट्स थे, राइट। सो ये भी बोला गया है, ग्लोबली अराउंड 80 मिलियन स्टूडेंट्स रिमेन आउट ऑफ स्कूल। सो नो, यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन 800 मिलियन बोला गया है। अगर हम वापस जाएं, अराउंड 80 मिलियन एकदम गलत नंबर है, यहाँ बोला गया है ग्लोबली मोर देन 800 मिलियन स्टूडेंट्स रिमेन आउट ऑफ स्कूल, ओके। सो द करेक्ट आंसर हियर is not the correct statement here are 1, 2, 3 and 5 and 4th is the incorrect one। ऐसा पैसेज में नहीं बोला गया है, राइट। सो हम लोग ऑप्शन 4 को सही आंसर चूज करेंगे, ओके। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पैसेज, नाउ प्लीज हैव अ रीड एट इट। This is about child care. It says, read it a little, I'll give you a moment. It says, historically, child care as an idea has been central to the building of societies. All right. Now, the institution of family in itself, let me have a pointer here. Yeah, so it says the institution of family in itself has been central to the emergence of other institutions like religion, justice and modern nation state, right? Various cultures and religions have approached the idea of child care differently, but regardless of their diversity, there has been a secular concern towards the welfare of children, as it was seen as their duty to carry the family forward into the next generation। तो यहाँ बोला गया है कि चाइल्ड केयर जो है वो सोसाइटीज की बिल्डिंग में एक बहुत ही ज़्यादा सेंट्रल आइडिया रहा है, यानी कि बच्चों का ध्यान रखना, ओके। सो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है, यानी कि जो फैमिली की ही बात है, वो जो है कि सेंट्रल इमर्जेंस, मतलब वो ही एक मेन पॉइंट रहा है, जो कि रिलीजन, जस्टिस और मॉडर्न नेशन स्टेट्स के जो ये बाकी इंस्टीट्यूशंस जो आए, उनका सेंटर पॉइंट फैमिली ही रहा है, राइट। और फैमिली का जो मेन पॉइंट है वो चाइल्ड केयर रहा है हमेशा।
क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन आर सीन एज अ ड्यूटी टू कैरी द फैमिली फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन. ऑलराइट, सो आगे देखें. ओवर द पासिंग ऑफ टाइम मॉडर्न नेशन स्टेट्स इमर्ज्ड एंड चाइल्ड केयर मूव्ड फ्रॉम बीइंग अ कंसर्न लिमिटेड टू इंडिविजुअल फैमिलीज to a concern that was shared by society and the nation. ठीक है, so मतलब अब जब मॉडर्न नेशन स्टेट्स हो गई हैं तब चाइल्ड केयर जो है केवल एक फैमिली की कंसर्न ना रहकर पूरी सोसाइटी और नेशन की कंसर्न बन चुका है. मतलब कि द कंट्रीज वांट कि इनके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं देशों में, उनका ध्यान रखा जाए अच्छे से. राइट, सो इन द यूनाइटेड स्टेट्स चाइल्ड केयर बिगैन इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग नर्सरीज इन पुअर सेटलमेंट कॉलोनीज to take care of infants while their mothers were at work performing industrial labor. Right, so US में कहाँ से स्टार्ट हुआ ये चाइल्ड केयर स्टार्ट हुआ कि नर्सरीज मिले पुअर कॉलोनीज में, जिससे कि इन्फेंट्स का ध्यान रख सकें जब उनकी मदर्स जो हैं वो लेबर का काम करने गई हुई हैं. राइट, तो US गवर्नमेंट गॉट इन्वॉल्व विद चाइल्ड केयर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो चाइल्ड केयर में वो इन्वॉल्व हो गए US गवर्नमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट होते ही, वेयर अंडर द लैंडहम एक्ट ऑफ 1943 $52 million was provided from 1943 to 46 to subsidize all round day care for children up to 6 days a week. Right, तो US गवर्नमेंट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होते ही एक एक्ट पास किया था, लैंडहम एक्ट ऑफ 1943, जहाँ पे $52 million दिए थे जिससे कि 6 day a week चिल्ड्रन को ऑल डे केयर मिले. तो उससे क्या हुआ? दिस सपोर्ट अलाउड वर्किंग विमेन इन यूनाइटेड स्टेट्स टू टेक पार्ट इन द वॉर, सो दैट जो वर्किंग विमेन थे वो वॉर में भी पार्ट ले पा रहे थे. बट ये जो सर्विस है ये दोबारा टर्मिनेट हो गई, बंद कर दी गई आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर. तो जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ गवर्नमेंट ने सर्विस बंद कर दी. तो फिर क्योंकि विमेन को दोबारा उनसे एक्सपेक्टेड था कि अब आप घर जाएंगे एंड यू विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन फुल टाइम. ऑलराइट, तो वो सर्विस बंद हो गई थी. फिर वॉर के बाद 1970s तक कोई रियल प्रोग्रेस नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ स्टेट मैंडेटेड सपोर्ट टुवर्ड्स चाइल्ड केयर. ओके, सो चाइल्ड केयर की तरफ गवर्नमेंट का कोई उन्होंने खुद से कोई सपोर्ट नहीं करा कि अगर विमेन वर्क करने जाएंगी तो बच्चे कौन संभालेगा, उसका कोई प्रोविजन नहीं था. एंड इन 1975 प्रेसिडेंट निक्सन vetoed a bill that would provide care for all US children. ओके, तो 1975 में US प्रेसिडेंट ने एक बिल लेकर आए, वीटो किया एक बिल को कि सारे US के बच्चों को चाइल्ड केयर मिलेगा ही मिलेगा. Now, the history of state-mandated child care has been similar in most countries, with most large countries dragging their feet on implementing meaningful child care reform. Right? So, ये जो child care history जिसकी history है state mandated child care की, वो सारी countries में same ही है, with most large countries जो है वो अपने फीट ड्रैग कर रही हैं. इसका मतलब हमें देखना है, इस पे बेसिक क्वेश्चन है ऑन इम्प्लीमेंटिंग मीनिंगफुल चाइल्ड केयर रिफॉर्म. राइट, सो चाइल्ड केयर को इस चीज़ को कैसे रिफॉर्मेशन लाएं यहाँ पर, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी कंट्रीज हैं वो अपने फीट को ड्रैग कर रही हैं. नाउ वी विल सी द मीनिंग. अब आगे बोला गया है, in light of this gap inadequate policy planning and implementation, as well as the ethical and moral imperative to protect and care for the young, several actors in civil society and in the form of non-governmental organizations, religious organizations and various charitable trusts chose to fill this gap. So क्योंकि एक गैप था पॉलिसी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, तो और लोग बहुत एथिकली फील करते हैं कि यंग बच्चों को केयर मिलनी चाहिए. तो जो हमारी सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सिविलाइज्ड लोग हैं, सो इन द फॉर्म ऑफ NGOs, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट आए जो कि गैप को फिल कर पाए. कौन सा गैप? इनएडिक्वेट पॉलिसी प्लानिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन.
जो है उसका जो गैप है उसको NGOs, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटेबल ट्रस्ट फिल कर पाएँ, राइट. So over the passing of time, their role has expanded and they went on to support children across the world while also advocating better state intervention through rights-based advocacy in various different countries. तो जैसे जैसे टाइम पास करता गया तो जो NGOs हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड चिल्ड्रन को सपोर्ट करा और ऑल्सो उन्होंने एडवोकेट करा यानी कि सपोर्ट करा और फाइट करा फॉर कि आप की स्टेट को यानी कि कंट्रीज को इंटरवीन करना चाहिए इसमें चाइल्ड केयर में थ्रू राइट बेस्ड एडवोकेसी. मतलब उन्होंने कहा, उन्होंने राइट्स दिखाए, उन्होंने बोला राइट्स का सपोर्ट लिया और बोला कि क्योंकि चिल्ड्रन हैव राइट्स, उनको चाइल्ड केयर मिलना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इस बेसिस पे NGOs और ये सब थे, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है सपोर्ट किया और कॉल आउट किया कि गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए चाइल्ड केयर. ओके, सो इंडिया हैज़ बीन severely has seen several extremely progressive pieces of legislation being passed to support child care and the well-being of India's children. Okay, तो कहने कि इंडिया ने भी काफ़ी progressive pieces देखे जो पास हुए to support child care and well-being of India's children. Schemes like midday meal scheme and legislation such as right to education. तो अब बता रहे इंडिया में midday meal और right to education जो है वो उसी लाइन्स में है कि चिल्ड्रन की टेक केयर हो, चाइल्ड केयर मिले. Have looked to guarantee schooling as well as ensure that children are able to get nutritious food. Okay, so institutions such as Jawahar Navodaya Vidyalayas and the Kendriya Vidyalayas have looked to provide quality education at the lowest possible cost. So on the lines of education उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एजुकेशन और मील प्रोवाइड कर रही है फॉर चाइल्ड केयर. ओके, सो चाइल्ड केयर में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. सो इंडिया इज टेकिंग केयर ऑफ its children by providing midday meal scheme and the right to education. जो वो KVs जो केंद्र विद्यालय हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय हैं उनमें लो कॉस्ट एजुकेशन देकर वो उनको उनके राइट्स दे रही हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने के. ओके, आगे कह रहे हैं legislation guaranteeing maternity leave has looked to reduce barriers that may prevent women from entering the workforce. Okay, so maternity leave की गारंटी है, 6 महीने की maternity leave मिलती है, तो इससे barriers reduce हुआ है कि जिससे कि women जो हैं काम पर आ सकें, उनको कोई difficulty ना हो. right now ये हमारा passage था. now यहाँ कहा जा रहा है when did the US government get involved with child care. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, चाइल्ड केयर में वो पहले कब इन्वॉल्व हुए थे. तो US गवर्नमेंट गॉट इन्वॉल्व विद चाइल्ड केयर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ओके, सो आंसर क्या है, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ऑलराइट, सो आवर आंसर इज ऑप्शन 3. ओके, नाउ मूव अहेड. Why did the US government get involved with child care services? क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि विमेन जाएं और जाकर वॉर लड़े. ओके, सो बिकॉज दे वांटेड वर्किंग विमेन, ऑप्शन 4, वर्किंग विमेन टू टेक पार्ट इन द वॉर. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर. नाउ आगे कह रहे हैं हु filled in the gap that was caused because of inadequate policy planning and implementation as well as the ethical and immoral imperative to protect and care for the young. all right, तो यहाँ पर किसने करा, आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, NGOs ने करा था, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने करा था, चैरिटेबल ट्रस्ट ने करा था. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 5, ऑल ऑफ दीज. ओके, नाउ आगे देखें. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ड्रैगिंग देयर फील्ड, इसका फीट, इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि आप रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बट स्लोली क्योंकि दे डू नॉट वांट टू डू इट. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. ये सीधा सीधा मीनिंग आपको अगर पता होगा आप कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो आपको थोड़ा डिसाइफर करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है. एग्जाम में कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट ना करें अगर आपको आंसर नहीं पता है तो. ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं. ओके, सो आप तब ना, अगर आपको ऐसा डाउट है कि आप श्योर नहीं हैं तो आप अटेम्प्ट ना करें ऐसे क्वेश्चंस. और इडियम्स में स्पेशली ऐसा होता है कि हमें अगर उनका आंसर या तो पता है या नहीं पता है. ऑलराइट,
सो उसमें गेस मारने से एक्चुअली एग्जाम में हमारी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है. सो मेक श्योर कि आप एक्यूरेट हो, बहुत ज़्यादा गलतियाँ ना करें. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द फ्रेज वेंट ऑन. ओके, that has been emboldened in the passage. Okay, so went on का मतलब क्या होता है? went on मतलब कि आगे बढ़ना, ठीक है, कंटिन्यू करना. ओके, सो कंटिन्यू हो गया हमें, पर एंटोनिम चाहिए. सो आई राइट इट हियर. जस्ट अ मोमेंट. सो went on means to कंटिन्यू. ओके, और इसका हमें एंटोनिम चाहिए, तो मतलब डिसकंटिन्यू होगा, है ना, राइट, डिसकंटिन्यू. तो फाइंड आउट का मतलब क्या होता है? पता लगाना, ठीक है, या तो पता लगाना किसी चीज़ को, और डिस्कवर समथिंग, तो ये मतलब नहीं है डिस्कवर. पुट आउट मतलब कि डिस्प्ले कर देना, राइट, डिस्प्ले कर देना या ब्लो कर देना. साइन आउट मतलब बाहर चले जाना, साइन आउट ऑफ अ डिवाइस, सो एग्जिट. टेक आउट मतलब टू कैरी समथिंग. एंड ड्रॉप आउट मीन्स कि आपने अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ दी. सो लीव द एजुकेशन, या कुछ भी चीज़ आपने ड्रॉप आउट कर दिया, प्लान ड्रॉप आउट कर दिया, या डिसकंटिन्यू कर देना, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 1. ऑलराइट, ड्रॉप आउट. अब आगे देखते हैं. सो दिस इज वन क्वेश्चन. इट सेज व्हाट आर द प्रोग्रेसिव थिंग्स दैट इंडिया हैज डन in order to support child care and the well-being of India's children as mentioned in the passage. तो क्या क्या करा है? मिड डे मील करा है, यस. राइट टू एजुकेशन करा है. इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ये भी करा है, राइट. और मैटरनिटी लीव्स, यस, ये भी करा है, सो दैट विमेन को जॉब करने में कोई दिक्कत ना हो. सो 1 2 3 4 all of these are correct. All right, so the correct answer here is option 5, all of these. Okay, so now friends, this is all for this today's session. आप 4 o'clock join करें, आपको और ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. सो टुडे वाज आवर इंग्लिश सेशन. इससे पहले भी हमने इंग्लिश का SBI PO का 2021 के रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, मेंस वाले. सो अभी क्योंकि आपका IBPS का भी एग्ज़ाम आ रहा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा टाइम जो है अपना वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में लगाएं, और सब बेस्ट यूटिलाइजेशन करें अपने टाइम का. और इससे अच्छा यूटिलाइजेशन क्या होगा कि आपका प्रीवियस ईयर के पेपर सारे डिस्कस हो रहे हैं, सारे पैटर्न्स मिल रहे हैं, विद सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, राइट. सो join us every day Monday to Saturday at 4 PM on our channel. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब to our channel and do not forget to press the bell icon.